Assalamu alaikum everyone, this is Sabahat and welcome to my live session. So first of all, let me go on different platforms and see who's live with me. And in the meantime, in fact, those of you who are already watching me and who are waiting for me to join this live stream, so do let me know where you're logging from. Are you from Pakistan? Are you from abroad? Or are you from any other province or district of Pakistan? So till आप ये चीज़ type करते हैं, I'll just be back in a jiffy. Okay. So what do you think about today's topic? It's a bit tricky, आज का जो topic है. Okay. Okay, so I can see myself live on the other side on different platforms, and till the time you join in, and those of you who are watching, obviously you people are shy to just write down where you're logging from, आप कहाँ से जो है watch कर रहे हैं. So it's okay, it's totally okay. I totally respect your shyness. So जब भी whenever you feel that shyness gone and you feel confident, you can always pour in your comments in the inbox. So I'm just going to start with my topic. So आज का जो topic है ना, it's basically about like when I'm thinking about different topics, then I have different things going on in my mind. So आज का जो topic है, it's very much related with our daily lives. कि हम अक्सर अपनी ज़िंदगी में देखते हैं कि किसी ना किसी फॉर्म में हम सफ़र कर रहे होते हैं, और at times we don't know what's the reason of that suffering. But then if you have insight, and if you are in the habit of curious thinking and questioning, and you keep on questioning different things, different people, you keep on asking questions, you keep on analyzing your lives and other people's lives. Obviously आप जब लोगों के लाइव्स देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो आपको बहुत कुछ सीखने का भी मौका मिलता है और बहुत कुछ जो है आपको पता भी चलता है. सो उसी हवाले से जो है आज का जो टॉपिक है, इट इज़ अबाउट व्हाई डू वी सफ़र. लाइक व्हाट इज़ दैट पर्टिकुलर थिंग जिसकी वजह से हमें लगता है हम सफ़र कर रहे हैं, या मे बी हम नहीं देख पा रहे. सो okay, I'll just take your who is watching. Abdul Salam, thank you so much for joining and watching. Walaikum Assalam, I hope you're fine. Arfin Malik, thank you so much for watching and joining this session. So उसमें जो है ना, like it is why do we suffer? Because we do not accept the dual nature of life. हर इंसान की लाइक दिस इज़ वेरी सिंपल, बट यह है कि यू नीड टू थिंक, यू नीड टू लुक आउट ऑफ द बॉक्स, यू नीड टू आपको हर वक्त हर सेकंड अगर आप अपनी लाइफ का कंपैरिजन कर रहे हैं, किसी के साथ नहीं कंपैरिजन करने को मैं कह रही, बट यह आप देखें कि हमारी जो वर्ल्ड है या हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, इट्स लाइक एवरीथिंग इज़ हैपनिंग इन ड्यूअल नेचर. अगर आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लें कि इंसान की ज़िंदगी में खुशी भी है और गम भी है. सो दिस इज़ द ड्यूअलिटी ऑफ लाइफ. अगर वी एज इंडिविजुअल्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस कि भाई देयर इज़ अ ड्यूअलिटी टू लाइफ, तो हमारी सफरिंग ख़त्म हो जाएगी. सो वाई डू वी सफ़र? Because we do not accept the duality of life. And today with different examples I'm going to explain you कि भाई ये किस तरीके से, यानी किस बेसिस पे मैं कह रही हूँ. And then at the end of this session, if you agree with my points and you agree with what I'm saying, then you'll have to tell me in the comment box. So सबसे पहले तो जो है ना, हम जिस पॉइंट को डिस्कस करेंगे ना, दैट इज़ एम्ब्रेसिंग imperfections. अब imperfections क्या है कि लाइफ इनहेरेंटली इट्स imperfect. किसी की भी लाइफ जो है ऐसी नहीं है कि आप कहें कि इट्स परफेक्ट. बज़ाहिर आपको लाइक इफ़ यू आर
observing or even if you're looking at people on social media, you might think कि भाई इनकी life बहुत perfect है, like the way they are, you know, presenting themselves, yeah, the way they are boasting about different things in their life, the way they are, you know, आपको different examples के through जो है दिखा रहे हैं कि भाई देखें ये मेरी हाई फाई लाइफ है और मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ, या मैं वो करता हूँ, मैं ये करता हूँ, and this is how I have ended to have this kind of life. So अगर if you observe the duality, so you will know, if you go, you know, behind the screen, तो behind the screen जो है it's all fake, mostly it's fake, क्योंकि सोशल मीडिया पे जो प्रेजेंट किया जाता है या मीडिया में भी जो आप देखते हैं प्रेजेंट किया जा रहा है, इट इज़ इनहेरेंटली इट्स नॉट परफेक्ट, इट्स समथिंग दैट्स मेड अप. आप अगर जो है देखें लाइक अगर आप जो है जिस तरीके से प्रोडक्ट फोटोग्राफी की जाती है, अब प्रोडक्ट फोटोग्राफी में जब आप एड्स देखते हैं, किसी ने जो है टेबल सजाया हुआ है, खाने के साथ सजाया हुआ है टेबल, और उसके ऊपर वो जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं, जो खाना सोटू से पड़ा हुआ है, उसको देखकर आपके मुंह में पानी आएगा. व्हाट इज़ दैट? वो पानी जो है आपके मुंह में आ रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने उसको प्रेजेंट किया हुआ है, जिस तरीके से उन्होंने उसे ग्लेजी बनाया हुआ है या हाईलाइट किया हुआ है या कलर्स के साथ उसको जो है किया हुआ है. सो जो अंदर की बात है, बिहाइंड द सीन्स की बात है कि वो जो फूड है या वो जो प्रोडक्ट फोटोग्राफी है, उसमें दोज थिंग्स दो दे आर रियल, पर उनको प्रेजेंटेबल बनाने के लिए उसके ऊपर उन्होंने क्या कुछ डाला होता है. किसी ने उसके ऊपर जो है डिश वॉशर डाला होता है, किसी ने उसके ऊपर जो है इस तरह के जो है यू नो वार्निश की होती है. सो practically those things are not for, you know, human health. आप देखेंगे अक्सर एड्स में जो है लोग कम ही खा रहे होते हैं, बहुत कम ऐसे होता है. अब ऐसे एड्स आ रहे हैं जिसमें जो है लोग कुछ खा भी रहे होते हैं, बट देन उसमें वो चीज़ दिखाएंगे जिसके ऊपर जो है वो प्रोडक्ट के ऊपर वो जो आर्टिफिशियलिटी है वो चीज़ अप्लाई नहीं हुई हुई. दे वुड बी ईटिंग द रियल थिंग, बट देन यू नो दिस इज़ द ड्यूअलिटी कि रियलिटी क्या है और आपको किस तरीके से पेश की जा रही है. सो दिस इज़ नंबर वन थिंग कि देयर इज़ इम्परफेक्शन इन लाइफ एंड वी एज इंडिविजुअल्स वी नीड टू एक्सेप्ट दैट इम्परफेक्शन. जब आप इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट करेंगे तो देन आपकी सफरिंग भी कम हो जाएगी. अच्छा, देन इसमें आप अगर जो है यानी मज़ीद ये चीज़ देखें कि लाइक आप जो है एज अ ह्यूमन बीइंग, लाइक देयर आर मेनी पीपल हु आर meticulously they are perfect and they try to do everything meticulously in detail. ठीक है, हर चीज़ वो डिटेल में करते हैं, बट देन ऐसा भी तो होता है कि आप प्लान करते हैं डिटेल में, पर वो चीज़ उस तरीके से नहीं हो पाती जिस तरीके से आप प्लान करते हैं. लाइक इफ़ एज अ इंडिविजुअल आई वांट के बी आई शुड टीच मैनी पीपल जिनको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, एंड जितना ज़्यादा मैं जो हूँ अपना नॉलेज शेयर कर सकती हूँ या उनको उससे अच्छे तरीके से जो है ताकि वो उसको जो है ग्रैस्प कर सकें कम्युनिकेशन को और आगे लेकर चल सकें, बट देन देयर आर टाइम्स लाइक मैं नहीं कर पाऊँगी फॉर द सिंपल रीज़न आई नीड टू एक्सेप्ट दैट आई एम अ ह्यूमन एंड आई माइट फेल, क्योंकि जो चीज़ है टू अर्र इज़ ह्यूमन टू फॉरगिव इज़ डिवाइन. सो इंसान जो है ख़ता का पुतला है, उससे गलती हो जाती है, बट जब तक ये चीज़ आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इफ़ आई डू नॉट एक्सेप्ट दिस दैट आई एम इम्परफेक्ट, आई माइट बी एबल टू, आई माइट मेक मिस्टेक्स, तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगी या आई माइट नॉट बी एबल टू फेस लाइफ एज इट इज़. सो दिस इज़ वन थिंग कि यू नीड टू एक्सेप्ट योर इम्परफेक्शंस. अच्छा, फिर इसमें एक और जो डुअलिटी ऑफ लाइफ में चीज़ आ जाती है, मैं साथ के साथ आप लोगों के कमेंट्स भी ले लूँ. हमाद अली ख़ान, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड हु एल्स इज़ देयर, मोहम्मद अदील, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. वालेकुम अस्सलाम, आई होप यू आर फाइन, आई एम फाइन टू. अच्छा, इसमें एक और जो चीज़ आती है दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेजर एंड पेन. अब अगेन आप देखें प्लेजर एंड पेन में अगेन डुअलिटी आ गई है कि प्लेजर भी है, पेन भी है. अब किस तरीके से है कि लाइफ जो है इट्स अ बैलेंस ऑफ पेन एंड प्लेजर.
किसी की लाइफ ऐसी नहीं है कि उसकी लाइफ में हर वक्त खुशियाँ ही खुशियाँ हो, और किसी की लाइफ ऐसी नहीं है कि उसमें हर वक्त पेन ही पेन हो। क्योंकि अगर जो है खुशी होती है तो एक टाइम आता है जब डाउनग्रेड होती है और पेन भी आती है, देन अगर पेन होती है तो एक टाइम आता है जब खुशियाँ भी आती हैं। सो इट्स अ मिक्सचर, कभी खुशी है कभी गम है। सो आपने इन दोनों चीज़ों को साथ लेकर चलना है। ये नहीं कि आपको खुशियाँ मिल रही हैं तो आप जो है, जब खुशियाँ मिल रही हैं तो यू आर a bit grateful but not very grateful, but जैसे ही आप पे जो है कोई मुश्किल आई है, कोई पेन आई है, तो आप जो है बुरा भला कहना शुरू कर दें कि नहीं मैंने तो ये सब कुछ किया पर मेरे साथ ये हो गया, तो मेरे साथ ही क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने तो ये भी किया वो भी किया। सो दिस इज बीइंग अनग्रेटफुल। सो आपके ऊपर कोई भी दौर हो, चाहे वो अच्छा दौर हो चाहे वो बुरा दौर हो, यू हैव टू बी ग्रेटफुल। देर आर मेनी पीपल जिनके पास जो है वो सब कुछ नहीं होगा जो आपके पास है। सो हमेशा अपना जो कंपैरिजन है वो अपने से कम लोगों के साथ करें जिन ताकि आप शुक्रगुजारी कर सकें। सो मेन मकसद है कि आपको किसी भी हाल में नाशुक्रा नहीं होना, चाहे आप जो है अच्छे वक्त में हो या चाहे आप गंदे वक्त में हो या बुरे वक्त में हो। उसमें आप देखें लाइक बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आप लाइक यू वर्किंग हार्ड ऑन अ प्रोजेक्ट, किसी प्रोजेक्ट की एग्जांपल लेते हैं और ये है कि जब आप उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो यू वर्क वेरी हार्ड और आपको पता है आपने बहुत उस पर वर्क हार्ड किया है, एंड देन यू हैव टू फेस क्रिटिसिज्म ऑन योर वर्क। सो इंस्टेड ऑफ कि भाई आप उस क्रिटिसिज्म को नेगेटिवली देखें, आप ये देखें कि उस नेगेटिविटी में से या उस नेगेटिव क्रिटिसिज्म में से आप अपने लिए क्या बेनिफिशियल निकाल सकते हैं। हो सकता है कि वो क्रिटिसिज्म उस वक्त आपको बहुत बुरा लग रहा हो, पर वही क्रिटिसिज्म आपके आगे जाकर कहीं और काम आ जाए। ये बहुत से आप लोग जो है जो कि इन वर्किंग एनवायरनमेंट में वो ये चीज़ फेस करते होंगे कि अगर जो है आप क्रिटिसिज्म को पॉजिटिवली लें अपने काम में तो उससे जो है आप गेन करते हैं, ना कि आप जो है उससे जो है कोई डिग्रेड फील करते हैं या आपको होता है कि भाई ये जो है क्या क्यों कहा गया है मुझे, तो दिस इज़ नॉट राइट, दिस एंड दैट। सो यू हैव टू टेक आउट द पॉजिटिविटी आउट ऑफ दैट क्रिटिसिज्म, दो एट दैट टाइम मे बी आपको उस टाइम पे रियलाइजेशन ही होगी कि भाई ये क्रिटिसिज्म जस्ट था, बट इन द लॉन्ग रन जब आप कोई और प्रोजेक्ट करेंगे या कोई और काम करेंगे या से किसी और फर्म के साथ काम करेंगे या मे बी मेरी तरह इधर बैठ के जो है कुछ शेयर कर रहे होंगे, तो देन यू विल नो कि भाई उस टाइम पे जो आपको क्रिटिसाइज किया गया था, हाउ डिड इट हम्बल यू, how did you become, how did you transform after that criticism. So you have to keep things in your mind, you need to absorb them and you need to learn out of those experiences. अच्छा जी, इकबाल जरकश आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं किसी की ज़िंदगी में किस्मत का कितना अमल दखल होता है, आप मेहनत करते हैं मगर इसका सिला नहीं मिलता। इकबाल जरकश, पता है एक्चुअली जो है आपको हर चीज़ का सिला मिलता है बट इट जस्ट टेक्स टाइम। मे बी जो सिला आप एक्सपेक्ट कर रही हैं, लाइक अगर मैं मेहनत कर रही हूँ तो आई नो कि उस मेहनत का सिला मिलेगा बट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, क्योंकि जो एजुकेशनल मेहनत होती है या जो एजुकेशनल कंटेंट होता है, अगेन दिस इज़ ड्यूअलिटी। अब मैं आपको आपके सवाल को एक्सप्लेन करती हूँ कि आप ये देखें कि आप जब मेहनत कर रहे हैं आपके पास दो रास्ते हैं, ड्यूअलिटी ऑफ लाइफ को अंडरस्टैंड करें। दो रास्ते किस तरह हैं, एक आपके पास जो है सीधा रास्ता है और एक आपके पास गलत रास्ता है। अब ये आप पे है, अल्लाह ने जो आप में दिमाग डाला हुआ है, जो शऊर डाला हुआ है, इट्स गोइंग टू टेल यू कि भाई आपने सीधा रास्ता इख्तियार करना है। सीधे रास्ते में क्या है, डिफ़िकल्टीज़ हैं। आपका जो गोल है इट इज़ गोइंग टू टेक टाइम क्योंकि यू विल हैव मैनी ऑब्स्टिकल्स इन योर वे। जो दूसरा रास्ता है, गलत रास्ता जिसको कहते हैं या बुराई का रास्ता कहते हैं या शैतान का रास्ता कहते हैं, तो दैट इज़ द रॉन्ग वे। सो रॉन्ग वे में क्या है, रॉन्ग वे में यू आर एबल टू अचीव योर गोल्स एट 10 टाइम्स स्पीड, फास्टर स्पीड, ठीक है। और उसमें जो है बट उस बुराई में वो सब अर्न करने में व्हाट इज़ दैट विच यू आर गोइंग टू लूज,
यू आर गोइंग टू लूज योर कॉन्शियस, आपका ज़मीर जो है आप खो देंगे ना जब आप बुराई के रास्ते पे जाएंगे। सो सिला आपको दोनों तरीक़ों से मिलना है, सिला आपको जो है अच्छा काम करने से भी मिलना है, बट देर से मिलना है, बट साफ़ सुथरा मिलना है, और ऐसा सिला मिलना है कि दैट इज़ गोइंग टू बी फ्रूटफुल। जो हम कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है। सो सब्र यू हैव टू, दैट इज़ एन एट्रीब्यूट जो आपने अपने अंदर पैदा करना है, अपने अंदर डालना है। जल्दबाजी का जो रास्ता है दैट इज़ नॉट गोइंग टू टेक यू टू अ गुड प्लेस। शॉर्ट टर्म उसके जो है बेनिफिट्स बहुत होंगे, बट इन द लॉन्ग टर्म देन देखें ना, इफ़ यू टेक द बुराई रास्ता तो फिर एंड टर्म में क्या होगा, एंड टर्म में आप मुसल्ले पे चढ़े होंगे, तौबा कर रहे होंगे, इस्तग़फ़ार कर रहे होंगे, एंड देन यू विल बी रिग्रेटिंग कि भाई वो जो सही रास्ता था उस पर स्लो चलता रहता, तो इन द एंड तो जो है बेनिफिशियल होना ही था ना। सो आई होप आई हैव बीन एबल टू आंसर योर क्वेश्चन। सो अगर फिर भी आपको कोई डाउट्स हैं, यू कैन अगेन टाइप इन योर कमेंट, सो मैं दोबारा आपका क्वेश्चन ले लूँगी। ओके देन अगर जो है हम, ये हो गया प्लेजर एंड पेन कि हम इसको जो है किस तरह लेते हैं कि हमें जब क्रिटिसिज्म मिलता है तो हम उससे अपने लिए बेनिफिट निकालें, ना कि उसको नेगेटिवली देखें। देन अगर आप जो है अगेन इफ़ यू नेविगेट बिटवीन सक्सेस एंड फेलियर, तो उसमें अगेन यही बात है कि इट्स सक्सेस एंड फेलियर, इट्स द सेम साइड, सेम फेस ऑफ द कॉइन। जिस तरह कॉइन की आप दो साइड्स होती हैं ना, इसी तरह सक्सेस एंड फेलियर इज़ द सेम, कि सक्सेस भी आपको मिलेगी, फेलियर भी आपको मिलेगा, बट देन आपने उससे जो है किस तरीके से जो है यू हैव टू कम आउट ऑफ इट। कि आप ये देखें कि जिन लोगों को बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल जाती है, सो हाउ आर दे एबल टू हैंडल दैट सक्सेस? आर दे हम्बल्ड? like are they those people who are really humbled कि जब उनको सक्सेस मिली तो they did not forget कि भाई वो कहाँ से आए थे, उन्होंने किस तरीके से स्ट्रगल की और कहाँ पर वो एंड अप किए। या उनको जब सक्सेस मिली तो how did they started behaving, did they became pharaohs of the time, did they started behaving like कि भाई उन जैसा कोई है ही नहीं, एंड दे डिड नॉट फेस एनी स्ट्रगल, और ये सब चीज़ें जो है उनके लिए थी और उनके लिए हैं, एंड दे आर गोइंग टू बी विद दोज थिंग्स फॉर एवर। सो सक्सेस टीचेस यू, इनफैक्ट सक्सेस जो है जब आप सक्सेसफुल होते हैं तो लोग आपका जो बिहेवियर होता है उससे देख कर बता सकते हैं कि आप सक्सेस को किस तरीके से लेते हैं। और अगर आप फेलियर होते हैं तो अगेन फेलियर में भी आप अपने आप को किस तरह कैरी फॉरवर्ड करते हैं, यानी फेलियर इन द सेंस कि यू आर नॉट दैट सक्सेसफुल। अब आप अक्सर देखेंगे दिस इज़ अगेन ड्यूअलिटी एंड दिस इज़ अगेन रियलिटी ऑफ लाइफ, कि व्हेन यू आर अ नो बॉडी तो आपको लोग जो है किस तरीके से लेते हैं। क्या वो आपके जो है आपको जो है बहुत ज़्यादा जो है सराहते हैं, या आप जो बात करते हैं उसको कहते हैं कि भाई इट्स ऑथेंटिक, या वो जो है आपके हाँ में हाँ मिलाते हैं, या वो आपको जो है सिर्फ जो है डिग्रेड करते हैं या आपके हर बात को क्वेश्चन करते हैं। सो दिस इज़, ये आपको बताता है कि व्हेन यू आर सक्सेसफुल एंड व्हेन यू आर अ फेलियर। सो फेलियर को मैं यहाँ पर फेलियर नहीं लूँगी, फेलियर को मैं यहाँ पर ऐसे लोग लूँगी जो कि अभी अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी उन्होंने कुछ अचीव करना है, अभी उन्होंने कुछ अचीव नहीं किया, और दुनिया का उनके साथ क्या रवैया है और उनका दुनिया की तरफ क्या रवैया है। सो व्हेन यू आर सक्सेसफुल वो भी पता चल जाता है आपके रवैये से भी, लोगों के रवैये से भी, एंड व्हेन यू आर अ नो बॉडी वो भी आपके रवैये से भी पता चल जाता है, दुनिया के रवैये से भी। सो दिस इज़ ऑल्सो ड्यूअलिटी ऑफ लाइफ, एंड देन दिस इज़ हाउ यू नेविगेट बिटवीन सक्सेस एंड फेलियर। और देन अगेन वही इसमें भी वही चीज़ आ जाती है कि भाई देर आर मेनी टाइम्स लाइक इफ़ यू वर्किंग इन ऑफिसेज यू माइट बी लाइक आपकी जो है एक साइड होती है जिसमें आप जो है ज़्यादा जो है अच्छा परफॉर्म करते हैं, बट देन अगेन एक साइड होती है जिसमें आप कोई इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते। सो what you can do is कि वो जो आपकी वीक साइड है you can learn new things ताकि आप अपनी वीक साइड को भी ओवरकम कर सकें और उसको पॉजिटिविटी में जो है चेंज कर सकें, या कोई यानी मज़ीद आप जो प्रोग्रेस कर सकें। अच्छा देन
अगेन इसमें जो है एक और जो चीज़ आ जाती है, दैट इज़ यू नीड टू लर्न हाउ टू बैलेंस कंट्रोल एंड लेटिंग गो। अब अगेन अगर हम इसकी बात करते हैं तो यू नो देर आर सर्टन थिंग्स इन लाइफ जिस पे आपको कंट्रोल होता है, बट देन अगेन देर आर सर्टन थिंग्स जिन पे आपको कंट्रोल नहीं होता। अब आप इसको इस तरीके से समझने की कोशिश करें कि आप कोई ट्रिप प्लान करते हैं अपनी फैमिली के साथ, हर चीज़ जो है आपने जो है ना प्लान कर ली कि भाई हमने यहाँ स्टे करना है, हमने ये जो है गाड़ी लेनी है, ये वाला ड्राइवर साथ जाएगा, क्योंकि डेफिनेटली जब आप किसी जगह ट्रैवल करते हैं आपकी कोशिश यही होती है कि जो भी आपके साथ ड्राइवर हो वो उस जगह से जो है वाकिफ़ हो, ना कि आपके जो है सड़क पे भी टाइम ज़ाया हो, आपका फ्यूल भी ज़ाया हो, कि रिसोर्सेज आपके ज़ाया हो। बेसिकली मकसद ये होता है, एंड इट योर टूर इट नीड्स टू बी बजट फ्रेंडली। सो आपने ये सब चीज़ें प्लान कर ली, बट देन यू डोंट नो कि भाई आगे जो है क्या है, आगे कुछ भी हो सकता है, मौसम अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है आपने जहाँ बुकिंग ली है वहाँ पर रश इतना ज़्यादा हो आपको वहाँ बुकिंग ना मिले, देन वेदर चेंजेस हो सकती हैं, लैंडस्लाइड्स हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। सो उसमें जो है आप क्या करेंगे, उसमें आप बैठ के जो है मातम मनाएंगे कि भाई इतना अच्छा ट्रिप प्लान किया हुआ था, इतने में जो है पैसे लग गए थे, बट ये जो है ये काम हो गया है। नो, यू आर नॉट गोइंग टू डू दिस, क्योंकि जो आप कर सकते थे विच वॉज इन योर कंट्रोल वो आपने किया, पर जो आपके कंट्रोल में नहीं है यू कैन नॉट डू एनी थिंग अबाउट इट। रादर यू नीड टू मेक एन ऑल्टरनेट प्लान कि अच्छा भाई चलो अब ये हो गया है, अब इसका जो है कोई ऑल्टरनेट ढूंढते हैं। हमेशा इसलिए कहते हैं कि जब भी आप प्लान करें तो उसमें जो है एक तो आपका डेफिनेट प्लान होता है, बट देन एक बैकअप प्लान भी होता है। सो ये सब चीज़ें जो है जो कॉन्टीजेंसी प्लान्स होते हैं वो बैकअप प्लान में आपके फॉल कर जाते हैं कि अगर ये ना हुआ तो इसकी जगह हम ये ऑल्टरनेट कर लेंगे या ये ऑल्टरनेटिव होगा। सो आप ये देखें कि जब आप अल्टरनेटिव भी करते हैं तो उससे भी आपका टाइम बहुत अच्छा गुजर जाता है। इट्स जस्ट दैट यू नीड टू लेट गो ऑफ सर्टन थिंग्स जो आपके बस में नहीं है, एंड देन यू कैन टेक कंट्रोल ऑफ सर्टन थिंग्स जो आपके कंट्रोल में है। देन अगेन वेदर कंडीशंस के अलावा अब जैसा आप हिली साइड पे जाते हैं, लाइक अगर आप जो है इस्लामाबाद से या पिंडी से जा रहे हैं या लाहौर से जा रहे हैं तो आपका जो है बॉडी टेम्परेचर एक डिफरेंट जो है सेटअप में होगा। सो आप जिस वक्त हिली एरियाज पे जाते हैं उधर आपका बॉडी टेम्परेचर एक डिफरेंट तरीके से चेंज होता है। ऑब्वियसली ज़्यादा जब आप हाइट्स पे जाते हैं, अगर किसी को जो है हाइट फोबिया है या किसी को जो है सांस का इशू है तो ऑक्सीजन लेवल्स घटेंगे। सो उसके लिए भी यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। एंड देन अगेन देर आर सर्टन अदर थिंग्स जिस तरह खटमल, पिस्सू, they are so common, so you have to be prepared beforehand. You need to take जैसा मॉस्पेल रिपेलेंट होता है या इवन बग बेड बग्स के लिए भी जो है स्प्रेज होती है, मोर्टीन्स वगैरह होती हैं, ये चीज़ें आप अपने साथ लेकर जाएं ताकि एट दी एंड जब आप वापस आएँ तो आप खटमल से ना काटे हुए हों सारे। सो दीज आर द थिंग्स, ये छोटी छोटी रेमेडीज़ होती हैं, टिप्स होती हैं जो कि आपने लाजमी जो है जब अपना ट्रिप प्लान करे होते हैं, यू हैव टू डू दीज थिंग्स इन एडवांस, क्योंकि दीज आर इन योर कंट्रोल। बट देन अगेन ये भी हो सकता है कि सब कुछ इस्तेमाल करके भी खटमल आपको काटे, सो दैट इज़ नॉट इन योर कंट्रोल। सो ऑल व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप एंटी एलर्जीज भी साथ ले जाएं या कोई ऐसी ट्यूब ले जाएं कि जब खटमल काटे तो आप उसके ऊपर लगा दें। कैलामाइल लोशन इज़ द बेस्ट वैसे। अच्छा, then again is accepting. Another point is accepting joy and sorrow. Now joy and sorrow, it's also duality of life, it's also part of life. ज़िंदगी में अगर खुशी है तो गम भी है, जिस तरह जो अगर सक्सेस है तो फेलियर भी है। सो उसमें rather than you have to rejoice both moments. सॉरो अगर है तो मैं ये नहीं कह रही कि उस पर खुश हों कि भाई सॉरो आ गया है एंड यू आर हैप्पी अबाउट इट, नो, इट्स जस्ट दैट यू नीड टू एक्सेप्ट इट कि ओके यस, हमने खुशी भी देखी है, हमने गम भी देखा है, एंड वी आर ग्रेटफुल फॉर व्हाट वी हैड, एंड वी डोंट कंप्लेन फॉर व्हाट वी डू नॉट हैव। बट देन अगेन सॉरो जो है, लाइक सॉरो इट्स एन इमोशन। सो अगर जो सॉरो होता है तो यू हैव टू एक्सेप्ट कि भाई पेन भी इंसान को ही मिलता है ना।
अल्लाह ने जो है इंसानों के लिए ही जो है गम भी रखा है, खुशी भी रखी है। एंड व्हेन यू आर अनहैप्पी या आप किसी पेन में हैं या तकलीफ़ में हैं, तो उसमें भी जो है यू हैव टू यू स्टिल हैव टू बी थैंकफुल कि भाई मे बी वो पेन जो जिस पेन में आप हैं वो शायद जो है उससे बहुत बेहतर है, जो कि एक परमानेंट पेन होता है या एक किलिंग पेन होता है या एक ऐसा पेन होता है जिसमें आप हर दिन जीते हैं, हर दिन मरते हैं। सो यू हैव टू बी पॉजिटिव। सो जब तक आपका माइंडसेट पॉजिटिव नहीं होगा, जब तक आप जो है ज़िंदगी को जो है ज़िंदगी की तरह नहीं लेंगे और जो चीज़ें आपके पास हैं उस पर शुक्र अदा नहीं करेंगे, तो देन सफ़र ही करेंगे। सो सफ़र नहीं करना जो एलिमेंट है ना कि वाई डू वी सफ़र, इट्स द सिंपल रीज़न वी डोंट एक्सेप्ट। अगर हम चीज़ों को एक्सेप्ट करना शुरू कर दें, अब अगर किसी को कैंसर हो गया है तो यू हैव टू एक्सेप्ट इट कि कैंसर हुआ है। देयर आर इलाज है, बहुत से लोग हैं जो कैंसर से जो है बिल्कुल कैंसर से आउट भी हो जाते हैं एंड दे वर्क ऑन इट, क्योंकि कैंसर से जो इम्यूनाइज होते हैं, कीमियोथेरेपी वगैरह भी होती है डेफिनेटली, बहुत से जो है साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं कीमियो के, बट देन अगेन वो लोग अपना एक लाइफस्टाइल चेंज कर लेते हैं, टोटल एक लाइफस्टाइल उनका चेंज होता है। बट देन अगेन इस तरह नहीं होता कि भाई उन पे जो है अगर बीमारी आ गई है तो उन्होंने जो है अल्लाह से जो है तकरार शुरू कर दिया है, गुस्सा शुरू कर दिया है, क्योंकि गुस्सा और नॉन एक्सेप्टेंस ये अपने आप को ही ज़्यादा तकलीफ देंगे। सो द अर्लियर यू एक्सेप्ट द बेटर इट इज़ फॉर यू एंड फॉर दोज हु आर अराउंड यू, क्योंकि इफ़ यू आर हेड ऑफ द फैमिली या इफ़ यू आर द कोर पर्सन, चाहे आप पेरेंट हैं, चाहे आप हस्बैंड हैं, वाइफ हैं, कोई भी हैं, किसी को भी अगर हो जाता है तो यू हैव टू स्टे स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ये तो जो रिलेशनशिप है उसमें पार्टनर्स जो हैं वही एक दूसरे का सहारा है। अगर आप ही एज कपल्स जो है कमज़ोर पड़ जाते हैं तो आप इर्द गिर्द या आपके जो बच्चे हैं आपने उनको जो स्ट्रेंथन करना है। सो यू हैव टू स्टे स्ट्रॉन्ग एंड इंशाल्लाह विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम चीज़ें जो है ठीक हो जाती हैं। So you just have to be positive and you just have to keep on praying for your good health and for the good health of everyone around you as well. अच्छा, देन जो है इसमें एक और जो चीज़ आ जाती है, दैट इज़ यू नीड टू रिकग्नाइज योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। हर इंसान में स्ट्रेंथ्स होती हैं, हर इंसान में वीकनेसेस होती हैं। स्ट्रेंथ्स जो है आपको मोटिवेट करती हैं टू डू मोर गुड, टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ इन दोज एरियाज। बट देन अगेन जो वीकनेस होती है, वीकनेस आपको जो है पुश डाउन नहीं करती। वीकनेस भी, इफ़ यू हैव दिस पॉजिटिव माइंड सेट, इफ़ यू थिंक कि भाई आपकी जो वीकनेस है दैट इज़ क्योरेबल, एंड क्योरेबल इन द सेंस कि आप उस पर वर्क कर सकते हैं। सो वर्क ऑन दैट वीकनेस, और वीकनेस को भी आप स्ट्रेंथ बना सकते हैं। बट देन अगेन जिस तरीके से जो लाइफ है वो परफेक्ट नहीं होती, इसी तरीके से हर इंसान भी जो है मुरक्का होता है गुडनेस का और वीकनेस का। सो स्ट्रेंथ्स भी इंसान में होती हैं और वीकनेसेस भी इंसान में होती हैं। सो परफेक्ट इंसान वही होता है या परफेक्ट लोग वही होते हैं जो एक दूसरे के साथ जो है मिल के जीते हैं और एक दूसरे के साथ मिल के रहते हैं। व्हेन इट्स इन अ वर्क एनवायरनमेंट, सो पीपल देयर आर व्हेन यू हैव अ टीम, इट्स अ डाइवर्सिफाइड टीम, उसमें हर तरह के लोग होंगे, उनमें वीकनेसेस भी होंगी, उनमें स्ट्रेंथ्स भी होंगे। बट ये नहीं कि भाई आप जो है किसी में अगर वीकनेस है, अगर स्ट्रेंथ नहीं है फ्रॉम स्किल पॉइंट ऑफ व्यू या वर्किंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रही हूँ, तो आप उनको अपनी टीम से निकाल के फेंक दें। सो आपने उन सब लोगों को साथ लेकर चलना होता है। उसी तरीके से आप टीम्स बनाते हैं और इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस वर्क करती हैं, चाहे वो स्मॉल लेवल पे हों चाहे वो बड़े लेवल पे हों। सो यू ऑल आर इंक्लूसिव, यू ऑल आर वन पार्ट ऑफ अ टीम। इट्स नॉट दैट कि आप जो है किसी को अलग अलग जो है कैटेगराइज कर दें ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। जिसकी जो स्ट्रेंथ है वो उसमें जो है ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता है, जिसकी जो वीकनेस है हो सकता है वो जो किसी एक की वीकनेस है वो किसी और की स्ट्रेंथ हो। सो यू कैन टेक द वर्क अकॉर्डिंगली, जिसकी जो स्ट्रेंथ है उससे आप वो काम ले सकते हैं। देन इसमें जो है एक और जो बात आती है, दैट इज़ अडेप्टिंग टू चेंज एंड स्टेबिलिटी। अब हमें जो है ना ये बड़ा मसला होता है कि भाई वी कांट एक्सेप्ट चेंज। सिंपल सी चीज़ है, भाई गवर्नमेंट चेंज हुई, आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे? जाहिर है
आपकी लाइफ जो है इफ़ेक्ट हो रही है इसलिए नहीं आप एक्सेप्ट कर पा रहे, बट देन हर एक इंसान ने देखें अपने लिए ज़रिए रोज़गार या अपना जो है जो सिस्टम है वो खुद चलाना है। अब वो जिस तरीके से चलाए, चाहे वो सुबह से लेकर रात तक मेहनत करे या चाहे वो जो है पार्ट टाइम जॉब करे या जो है वो पूरे घर के अफराद मिल के काम करें। सो यू हैव टू एक्सेप्ट टू दैट चेंज, क्योंकि अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे चेंज को और आप सिर्फ इस इंतज़ार में बैठे रहेंगे कि कोई दूसरा बंदा या बंदी आपके लिए करेगी तो तभी जो है आप सस्टेन होंगे, सो दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी बट ये नहीं होगा। सो एवरी वन हु कम्स इन दिस वर्ल्ड हैज़ टू स्ट्रगल, चाहे वो जो है अच्छे घराने में पैदा हो चाहे वो लो घराने में पैदा हो, एवरी वन सफ़र्स। हर एक ने अपने हिस्से का जो सौरो है, जो पेन है, जो स्ट्रगल है वो देखना है और करना है और उसको अबूर करना है। दैट इज़ द ओनली वे कि आप इस लाइफ को जो है चला सकते हैं एंड यू आर गोइंग टू बी एबल टू एक्सेप्ट द ड्यूअलिटी कि भी लाइफ में सब चीज़ें साथ साथ चलती हैं। सो इफ़ यू डोंट वांट टू सफ़र यू नीड टू एक्सेप्ट द चेंज। देन जो मेरा लास्ट पॉइंट है दैट इज़ यू हैव टू लर्न टू लिव विथ सर्टेनिटी एंड अनसर्टेनिटी, क्योंकि लाइफ इज़ ऑल अबाउट चेंज, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। देयर one time it you might have certainty and then at another time there might be no certainty. so ये आप ज़्यादातर जो है जॉब्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि भाई अगर आज किसी के पास बहुत वेल टू डू जॉब है and that person is very proud on that job and that person takes everyone as ants and माइस कि भाई इनके पास तो जो है कोई जॉब ही नहीं है, सब कुछ तो मेरे पास ही है। सो दैट थिंग इज़ नॉट गोइंग टू लिव फॉर एवर, क्योंकि अगर आज आपके पास है तो हो सकता है कल किसी और के पास हो। सो यू आर नॉट ऑलवेज गोइंग टू बी इन दैट पोजिशन। सो अगर आज किसी के पास गम है, दुख है और फेलियर्स हैं तो इट इज़न्ट नेसेसरी कि कल को भी उनके पास यही फेलियर्स हों और दुख हों और सॉरोज हों। देयर इज़ गोइंग टू बी अ टाइम जब उनका भी अरूज आएगा, दे टू माइट बी एट द टॉप, बट देन व्हेन दे आर एट द टॉप then everyone is going to observe their nature. In fact you yourself need to have this inculcated down into your core कि भाई when you grow up या when you rise to the top you are not going to do the things जो कि लोगों ने आपके साथ की when you were struggling. So अगर आप ये चीज़ जो है अपने जो है ख़वातीन तो खैर पल्लू से बांधती हैं, अब बंदे आई डोंट नो आप कहाँ से बांधेंगे, बेल्ट के साथ बांध लें, ठीक है या किसी तरीके से वॉलेट में डालें, अपने साथ बांध लें कि व्हेन यू आर गोइंग टू बी एट द टॉप यू आर नॉट गोइंग टू डू द थिंग्स जो कि लोगों ने आपके साथ की। इंसान है ना, खता का पुतला है, हो सकता है कि कल को जब आपको फेम मिले तो यू डू द सेम थिंग। सो बट व्हेन यू डू द सेम थिंग, वो जो एक कहते हैं ना मकाफाते अमल, सो मकाफाते अमल इज दिस के whatever you do to other people it's going to come back to you. So if you want to have a good life, if you want people to praise you for what you are, for what you say, for what you do, then you have to learn to be humble, you have to be down to earth, और इसी तरीके से आप जो है ज़िंदगी में सक्सेसफुल हो सकते हैं। नाउ लेट मी टेक योर कमेंट्स। इकबाल जरकाश, ओके यू आर सेइंग थैंक यू, यू आर मोस्ट वेलकम। अच्छा जी, सो दिस इज़ ऑल व्हाट आई वांटेड टू शेयर विद यू टुडे। और ये है कि if you liked my video and thank you so much, I can see your hearts and emojis coming right my way, so thank you so much। आपके ये जो hearts and emojis हैं you know they really motivate me, so इनको मज़ीद जो है अगर आप motivating बनाना चाहते हैं तो you can always subscribe to my YouTube channel, क्योंकि and then डोंट जस्ट सब्सक्राइब टू इट, उसको लाइक भी किया करें और उसको शेयर भी किया करें। दैट इज़ वन थिंग जो कि इट्स ओपन ओवर देयर कि यू कैन लाइक इट, यू कैन शेयर इट एंड यू कैन सब्सक्राइब टू इट। सो डू दैट एज वेल ऑन माई यूट्यूब चैनल। एंड इधर तो आपने मुझे बता दिया है कि वेदर यू हैव लाइक्ड माई कमेंट content or not, and अगर किसी का कोई question है regarding today's topic तो you are more than free, and the mic is open and the comment box is open. You can always pour in your suggestions and comments and your questions. I'll take them.
if अगर किसी का है. And then I can see someone at the top of my screen. It's Iqbal Zarkash, it's you. So I'll just try to bring you online on camera, and let's see if you want to come online. Let me just check. अच्छा जी, मैंने कहा और आप गायब हो गए. Okay, no worries, it's okay. So that's all for today, or inshallah I will see you people on Monday, inshallah. And hopefully by Monday I'll be 100% healthy. और जो खांसी है और जो ज़ुकाम है, जो थोड़े से जो है health related issues थे, so I'm sure they'll all be gone by Monday. So inshallah I'm going to take the live session on Monday. Till then, bye bye and take care. Allah Hafiz.